مہربانی کے لیے میں ملتمس ہوں 8 کلاس کی فاطمہ امیر سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام الہی سے اس بزم کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کسدار. میں ہوں تنویر ولایت عباسی. اس وقت میں موجود ہوں ماڈل اسکول وی سی لغال کے مقام کے اوپر, جہاں آج چیئرمین وی سی لغال لالا امتیاز عباسی کی طرف سے جو ہے اسکول کے بچوں کو جو ہے یونیفارم تقسیم کیا گیا. اس موقع پر جو ہے اسکول انتظامیہ کی طرف سے جو ہے شاندار پروگرام کا انعقاد کیا گیا, جس میں بچوں نے تلاوت کلام مجید, حمد باری تعالیٰ, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور ٹیبلو پیش کیے. بڑی خوبصورت اور بہتر تیاری تھی. اس پر میں اسکول پرنسپل نواز خان جدون کو اور سینئر ٹیچر قمر مصطفیٰ صاحب اور دیگر جو اسٹاف ممبران خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بڑی زبردست تیاری تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے کسی طرح کہ ہم اسلام آباد کے کسی اسکول میں. تو یقیناً یہ مٹی ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ساکی. اس دوران چیئرمین وی سی لغال لالا امتیاز عباسی نے جی جو ہے خطاب بھی کیا, اور خطاب کے دوران جو ہے انہوں نے ایک بات جب کہی جی کہ اس اسکول کو ہائی درجے کی کوشش جب کی جا رہی تھی تو مقامی لوگوں نے جو روڑے اٹکائے, اس پر مجھے ایک شعر یاد آیا. جو قومیں دیا کرتی ہیں تاوان میں آنکھیں اپنی, نابینا پیدا ہوتی ہے اولاد بھی ان کی. یقیناً ہر ایشو پر ہمیں سیاست کرنی چاہیے, لیکن سیاست بیسک طور پر عبادت کا نام ہے, جس طرح پرنسپل صاحب نے بھی فرمایا. لیکن بدقسمتی سے یہاں ہمارے معاشرے میں سیاست کو جو ہے اس وقت جو ہے ہمارے جو کرتوت ہیں, جو ہمارے لوگوں کے کرتوت ہیں, اس کو گالی سمجھا جائے گا اگر فیوچر میں ہم اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے. یقیناً اس ایشو پر میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اگر جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اپنے مسائل اور اپنے جو مستقبل ہوتے ہیں ان کی فیور کے لیے کام کرتی ہیں. یہاں لغال کے اندر آپ کو انجینئر, ڈاکٹر, بڑے بڑے عہدے والے نام بھی ملیں گے, وکیل بھی یہاں موجود ہیں, جو مختلف اداروں کے اندر جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جو غریب ہے یہاں کا وہ آج بھی پسا ہوا ہے, وی سی لغال کا پسماندہ ترین وی سی میں شمار ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے اس پر افسوس ہی کر سکتے ہیں. میں یہاں مقامی لوگ ہیں لالا امتیاز عباسی کے اس کام کے اوپر, ان کا کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم سر. بس ٹھیک ہے, لالے نے جڑا کام ہے صحیح ہے, بہت ہی صحیح ہے, بالکل اے ون کم, یعنی بچے کیا سب کچھ کیا نہیں سر لالے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بچے ایسا درد دل رکھتے ہیں اور ایسا خوشی ہو رہی کس طرح کا کام کرنا ہے. جی السلام علیکم. اچھا لالے جڑا ماشاءاللہ سرکاری بولڈنگ ہونے نے باوجود بچوں نال بڑا زبردست روانہ سپورٹ کیا ہے ماشاءاللہ جی, بڑی خوشی ہے. چیئرمین صاحب نے اگر اسی طرح معاملات جی دادا ماشاءاللہ چیئرمین صاحب نے کوشش کی تھی. کچھ وجہ لتا چکے گیا, ورنہ چیئرمین صاحب اس ٹائم سماجی یا دوسرا جتنے کام تعلیمی ادارے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں, تحسین پیش کر رہے ہیں. ایجوکیشن کے اوپر میں سمجھا کہ اگر کوئی بندہ اس طرح نیگیٹو کام کرنا تو انہوں لوگوں بے نقاب کی طرح چلنا چاہیے, اور بے نقاب بھی کتا جب پتہ بھی ہے لوگوں یہ گل نہیں برا اس سے بلادری تعلق رشتے یہ وہ بس خاموش ہی گئے. یہ سڑی بدقسمتی جڑے قومی مفاد پر ذاتی مفادات کی ترجیح دیں یا بلادری نظام علاقائی یا پارٹیاں نے اندر بٹی دے, میں سامنے سڑے مستقبل ہے بچے انہوں نے کھیلن تو نہیں تو میں سامنے سخت ترین مطلب عبرت کا نشان بنانا چاہیے. کوئی بھی شخص سے کوئی بھی ہے بالکل اسکول یا مسجد یا رستے یا پانی یہ سیاست کی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے. اور جڑا آدمی اچھا کام کرنا اسے ویلکم کرنی چاہیے اور اچھی اسلام پیش کرنا چاہیے. جی چچا بہت شکریہ امتیاز صاحب نے جو آئے جن نے رہنمائی کی ہے, علاقے کی اور سپورٹ کی, اور ٹیچر صاحب کا میں بہت مشکور ہوں جو انتہائی رہنمائی یہ کر رہے ہیں علاقے کے اندر ڈسٹرکٹ اعتبار کے اندر, یعنی کسی نے کی ہے بہت رہنمائی کی ہے. جی السلام علیکم سر. سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. یقیناً جو انتظامات تھے وہ بڑے قابل تعریف ہیں, اور ظاہر ہے ابھی آپ میں لگتا ہے جی کہ نئے نئے یہاں آپ نے چارج سنبھالا اور دور دراز علاقے ہے, کیا کیا مسائل ہیں, لوگوں کا کتنا تعاون ہے, اور آگے ہم امید کریں جی کہ انشاءاللہ جو ہے ہائی کی کلاسیں جلد اس کا اجرا ہوگا. سب سے پہلے تو میں یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک انتہائی یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں سوشل پارک کا مطلب یہ ہے کہ غریب لوگوں کے بچے ہیں یونیفارم نہیں ہیں, پہلے یونیفارم نہیں ہوگا کہ اسکول کا ڈسپلن نہیں ہوتا, تو انہوں نے کوشش کی ہے جی کہ 60% سے اباؤ بچوں کو انہوں نے, بچوں اور بچوں دونوں کو انہوں نے یہ پرووائڈ کیا ہے. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا ہے ساتھ کہ بھی آئندہ اگر کوئی کسی کے پاس بک نہیں ہے
नोट बुक्स नहीं है, वो बैग नहीं है, वो भी नहीं। ये नहीं है सियासत से बड़ा ताल्लुक होगा कि सियासी पार्टी को छोड़ें, सियासत को ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारे बच्चे हैं, बुनियादें ये हमारे बच्चे हैं। इन्होंने कहा कि मेरे बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, तो इनके लिए मुझे जहाँ तक जाना पड़ा तो मैं जाऊँगा और इनके लिए हर मुमकिन वो काम करूँगा जो इनकी बेहतर, और मैं इनको सलाम पेश करता जी सर, हूँ। माशाल्लाह आप मकामी ही हैं और बड़ा ज़बरदस्त डिसिप्लिन था बच्चों का, मुख्तसर था। आप क्या कहेंगे लाला इम्तियाज़ अब्बासी साहब के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी तनवीर भाई, ये खुसूसी तौर पे ये जो आज की तकरीब थी, यकीनन इससे बहुत सारी मोटिवेशन बच्चों को भी मिली है कि हमारे ऊपर भी कोई सर पे हाथ रखने वाले हमारे चेयरमैन या हमारे जो वीसी मेंबर हैं, कोई बच्चों के अंदर वो सलाहियत, फिर इन्होंने बच्चों को कैश इनामात दिए जिन्होंने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो यकीनन इससे बच्चों में बहुत बिल्डअप होता है और बेहतर करेंगे। और उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह से ये भी और मजीद भी जितने भी मेंबर हैं वो सारे अपने स्कूल जितने भी हैं हमारे, उनकी तरफ भरपूर तवज्जो देंगे और जो बच्चों के अंदर जो सलाहियतें हैं इनको उजागर करेंगे, इनको निखारेंगे। जज़ाकल्लाह। जी लाला माशाल्लाह 2 साल के अंदर बड़े ज़बरदस्त आपने काम किए हैं और स्पेशली जो एजुकेशन के सेक्टर के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। मैं यहाँ फिर गुजारिश करूँगा कि हर शूबे के अंदर आप सियासत करें, बरादरियों के अंदर सियासत करें, पार्टियों के अंदर सियासत करें, ये कौम का मुस्तकबिल है। मैं कैमरा मैन से कहूँगा जो है पीछे बच्चों को भी दिखाए, यही लोग जो है कल इंशाअल्लाह, पहले भी जिस तरह साकिब साहब ने बात की, हर इदारे के अंदर मौजूद होंगे, असम्बलियों के अंदर मौजूद होंगे अगर इनके ऊपर तवज्जो दी जाए। बड़ी अफसोस की बात है जी कि 8वीं क्लास के बाद जो है हमारी हर साल बच्चे 30 से 25 घरों में बैठ कर जो है अपनी एजुकेशन का स्टार्ट करती हैं, फिर उसके बाद घरों में ही वो जो उनके रोज़मर्रा के काम है। तो मैं समझता हूँ अगर इस के ऊपर भी जो कोई सियासत करते हैं तो वो खुली दुश्मनी जो है इन बच्चों के साथ कर रहे हैं। जी लाला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीर भाई बहुत शुक्रिया आपका जी। आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ, दावत मिली मुझे स्कूल की तरफ से, नवाज साहब हैं, असद साहब हैं और टीचर भी यहाँ मौजूद हैं, मैं इन सब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है बच्चे, ये हमारे सितारे, ये यहाँ से ही आगे जाएंगे इंशाअल्लाह नज़ीर। इनमें से ही कोई ना कोई बच्चा, जिस तरह आपने कहा कि असेंबली में होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, तो इनको देखभाल हमारा फ़र्ज बनता है इलाके की। और जो भी हो सका, जिस लोगों को मैं ये भी अपील करता हूँ, जितने भी लोग हैं यहाँ वीसी नुगाल के लोग हैं, बच्चों के ऊपर तवज्जो दें, जिनके पास वसाइल नहीं है उनकी सपोर्ट करें। मैं आपके चैनल से ही रिक्वेस्ट करता हूँ। दूसरा ये मिडिल स्कूल की बात है, सेकंड शिफ्ट की जो है, मैं MTA साहब से भी अपील करता हूँ। अब सब UC जूनियर काउंसिल ब्लॉक के MTA यहाँ मलकोट में हो गया और कई स्कूल हो गए, नुगाल को आपने पीछे छोड़ा हो गया, नुगाल से लोगों ने भी आपको वोटें दी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी करके हमारे स्कूल को भी अपग्रेड किया जाए। जज़ाकल्लाह। यहाँ मैं एक बात करूँगा जी, MPA नज़ीर अहमद अब्बासी साहब और MNA अली असगर खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ UC प्लक और BC लोहाल के जितने भी वर्कर हैं उनसे गुजारिश करूँगा जी कि भरपूर तरीके से आप जो है इस स्कूल के लिए फ़ाइट करें। और MPA साहब यकीनन ये वो VC है जो यूनियन काउंसिल की पसमानदा तरीन VCयों में इसका शुमार होता है, तो इसके बाद जो है इसकी तादाद भी जो है बिल्कुल पूरी है और आप भरपूर तरीके से स्पेशल जो है इसके ऊपर काम करें और इसको अहकामात सादर करें कि जो है इसकी हाई की क्लासों का इजरा हो। मज़ीद जो है ताला इसके साथ जो है प्लाट है, जगह भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ जगह भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर तकरीबन 5-6 कमरे मजीद बन सकते हैं आगे। जी जगह भी मौजूद है, बाउंड्री वाल की हुई है। अगर जगह की कमी है वो भी हम पूरी कर देंगे। जगह की चलो अगर कोई इशू भी है, लेकिन हो सकती है कम से कम जो है लोगों बच्चियों का टाइम ज़ाया ना हो। जी टाइम ज़ाया, तकरीबन 50 बच्ची जो अभी मुझे मिली है कि 40 और 50 के दरमियान यहाँ से 8वीं क्लास से जो बच्चियाँ अब घर में बैठ गई हैं, या कोई पिंडी चली जाएंगी या कोई किसी और स्कूल में शिफ्ट होंगी, उनके वालिदैन के लिए बड़ा मुश्किल है। यहाँ से आपको पता है ट्रांसपोर्ट का 5 से 6 हज़ार रुपया गाड़ी एक बच्चे का लेती है, तो यहाँ हमारा देहाती इलाका उसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ जो मसले थे उसका हमें बताया गया कि सर ने कि पानी का मसला है, और फिर फोर मैंने कहा कि इसको पैप जो कल परसों जो आपको मिल जाएगा, कुर्सियों का मसला था वो, और यहाँ एक रास्ते का मसला जो बच्चों के आने वाले ठेकेदार वहाँ खड़े हैं जी, उनको मैंने कहा कल से इंशाल्लाह वो काम भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, तक हमारे बच्चे
बिल्कुल आसानी से आ सके यहाँ पर। अच्छा जिस तरह लाला आपने पहले भी कोशिश की, निर्गोल स्कूल जो है वो काफ़ी अरसे से इल्तवा का शिकार था और आपने भरपूर एफर्ट की, गो के जो है फंड ज़ाहिर है गवर्नमेंट नहीं देना होता है, MP के साहब ने उसकी अप्रूवल भी दी, तो इसके लिए भी आप फाइट करें। एक मैं यहाँ फिर मुख्तसर सा जवाब ये चाहिए, कौन से वो बदनसीब लोग हैं जो एजुकेशन के सिस्टम में भी रोड़े अटका रहे, या वो ये चाहते हैं जी कि ये कौम पसमानदा रहे, हमारा मुस्तकबिल जो है कल इनका तारीख हो। ऐसे लोगों को अवाम की ताकत से, ये क्योंकि वो शख्स कभी भी आपके इलाके का नुगाल का हमदर्द नहीं हो सकता जो इस सेक्टर के ऊपर भी सियासत करे, ऐसे लोगों को बेनकाब करे। तमाम लोग किसी भी बरादरी से ऐसे लोगों के साथ हर किस्म का जो है सोशल बाइकाट होना चाहिए। मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं और इस जदीद दौर के अंदर भी वो एजुकेशन के अंदर या उसकी मुखालफत करते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? मैं ये कहता हूँ कि वो सीधे रास्ते पर आ जाए, कम से कम नुगाल के लोगों के, इन बच्चों के ऊपर तक सियासत जिसने करनी है, मुकाबला करना जिससे मुझसे मेरी जात इनफरादी तौर पे जो भी है वो मुझसे अटैक किसी को मुखालफत है मुझसे, मेरे कामों से अगर किसी को मुखालफत है वो डायरेक्टली मुझसे करे, वो किसी को मैं ये नहीं कहता। लेकिन हमारे तरक्याती कामों में, हमारे स्कूलों में, हमारी मस्जिदों में, हमारे जो फोर फंड जो फलाई कामों में प्लीज खुदारा ये काम ना कर। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ वैसे चेयरमैन, मैं उनके साथ लड़ाई तो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने लड़ाई की तो लोग कहेंगे जी चेयरमैन बन गए तो इन्होंने ज्यादती शुरू कर दी है। तो मैं उनको रिक्वेस्ट ये भी करता हूँ आज फिर उनसे कि आए मिल बैठे नुगाल के लिए, मैं आपके साथ दूंगा, आप मेरा साथ दें नुगाल की तरक्की के लिए। तो जे मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह तमाम वो जितने भी सियासी मुखालफीन हैं वो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर और जो कौमी मफाद है उसके रास्ते में रोड़े नहीं अटकाएंगे। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। जो निहायत ही खूबसूरत अंदाज में हमने बारी ताला पेश कर रहे थे, इसके बाद मैं मुल्तमिस हूँ 6th क्लास के साहिब से कि वो आए और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। इधर देखो बेटा, माशाल्लाह गुड। आज क्लास है मौलाना साहब को हमारे बहुत ही इज्जत कारी साहब है, हकीम साहब